Hello everyone, good morning. We are these days discussing complex analysis. Many videos and many concepts I have discussed in complex analysis, and today we are discussing Cauchy integral theorem. Okay. Now what is Cauchy integral theorem, and is it also named by some other theorem also? Yes. Cauchy integral theorem is also known as the Cauchy-Gorset theorem. Okay, it is named after Augustin Louis Cauchy and Edward Gorset. Now, what is this? What is Cauchy integral theorem? This is a very important statement for holomorphic functions. Now, why I am not saying analytic functions? Because what is important for this, that the fz should be analytic at each point within the domain. There should not be a single point where fz is not analytic. That is why they have said this. Okay, so this is an important statement for holomorphic functions in complex analysis. What is the meaning of holomorphic functions? This means that function is analytic at each and every point in a domain D without any single point at which it is not analytic, right? Now, the Cauchy integral theorem is based on contours. What is contours? Now, this theorem is based on contours. ठीक है. Now what is this contours? हमने अक्सर पढ़ा है contour integral, contour theorem. Okay, so what is these contours? Let us discuss what is this contour. Contour. Now, a contour is said to be a contour is said to be it is said to be closed. It is said to be closed if the starting and ending point of the closed curve coincides at each other. Okay, coincides at each other. Now let us see what is a contour. A contour is this. This is contour. See, this is the starting point A, and this is also a ending point B. Any closed curve. This is also a contour. This is also a contour. Any closed curve. Okay, these all are contour, but I think I am very much clear. The ending point and starting point of both curves are at the same point, are coincides each other. Then these type of closed curves are called contours. Okay, if you say that, see, अगर ये पॉइंट्स या कर्व एक दूसरे को कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है किसी भी पॉइंट पर, इफ अ क्लोज्ड कर्व क्रॉसेस, ना सी अभी भी ये, बट दिस इज नॉट अ कंटूर, यहाँ पे ये क्रॉस कर गया. If a closed curve crosses at any point, then that is not called a contour, though starting and ending point are coincides each other, but this is not a contour. Okay, clear? Now see, this is also a contour. If I say the starting point starts from here and this comes from here.
नाउ दिस इज अ कंटूर बट दिस इज नॉट अ कंटूर, क्योंकि कर्व ने अपने आप को कहीं पर भी कट नहीं किया है। ये कंटूर नहीं है, नॉट कंटूर, और ये कंटूर है, दिस इज अ कंटूर। ऑलराइट, तो बेसिकली जो थ्योरम है वो कंटूर पर बेस्ड है, इसलिए मैंने ये कंटूर्स आपको सिखाए हैं। लेट अस डिस्कस द थ्योरम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। ओके, this is Cauchy integral theorem. Now what the theorem says? Theorem says that if fz is an analytic function in and on, inside and on a closed curve C or a closed contour C without, or you can say is an analytic function inside and on a closed curve C at each and every point, at every point, दोनों बात एक ही हो गई तो हम लिख देंगे at every point, then इंटीग्रल C fz dz इज इक्वल टू 0। अगर एक फंक्शन fz जो कि एनालिटिक फंक्शन है और वो एक क्लोज्ड कर्व C के अंदर और कर्व के ऊपर हर पॉइंट पर एनालिटिक है, मैंने यही लिखा है, if fz is an analytic function inside and on a closed curve C at every point, then integral C fz dz is equal to 0. Okay, now let us see its proof. हम एक थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे? We know fz is equal to u plus iv and dz is equal to dx plus I dy. हमें क्या मिलेगा? fz dz is equal to integral C u plus iv dx plus I dy. Okay, now on solving this, I have to erase upper part of the board, so please, if you want, you take a screenshot. Now I got this. Now on multiplying u plus iv into dx plus I dy, what I'll get? I'll get integral C u dx minus v dy and plus I integral phi C v dx plus u dy. ये जो मैंने किया है ये आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला है। लास्ट जो वीडियो था मेरा लाइन इंटीग्रल पे, उस पे भी मैंने हर क्वेश्चन पे इसको सॉल्व किया। सो दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू, वी कैन गो गेट इट डायरेक्टली। ठीक है, नाउ व्हाट, अब देखिए हमने एक पढ़ी है, जब रियल इंटीग्रल्स पढ़ते थे तो हमने एक ग्रीन्स थ्योरम पढ़ी है। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि हमें ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों अप्लाई करनी पड़ेगी वो भी बताती हूँ। ठीक है, देखिएगा, आप ग्रीन्स थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, अब ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है? According to Green's theorem, if m and n are continuous,
M and N are two real functions have continuous first order partial derivatives on and inside C, then क्या कहती है ग्रीन्स थ्योरम? अगर ऐसा है तो क्या? तो कहती है कि इंटीग्रल C m dx प्लस n dy। अब देखिए ये सिंगल इंटीग्रल है, मैंने आपको सिखाया है सिंगल इंटीग्रल जब भी कभी होगा तो वो लाइन पे होता है। अब ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर डबल इंटीग्रल के। डबल इंटीग्रल D, जब भी डबल इंटीग्रल होता है वो किसी रीजन के लिए होता है। तो क्या लिखते हैं? del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y इंटू dx dy। ठीक है, ये कैसे होता है आप देखिए, ये कैसे वर्क करता है, लेट अस सी। तो ये कैसे वर्क करता है देखिए, ये हमारा कर्व है, क्लोज्ड कर्व, ये हमारा जो कर्व है वो क्लोज्ड कर्व C है, और इसके अंदर का जो एरिया है वो है रीजन R इन x एंड y प्लेन। इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसी चीज को हम उसमें कैसे कहें, जब हमने बात की है आपसे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि जो fz है वो इस कर्व C पर और इसके अंदर हर जगह पर अगर एनालिटिक है तो इंटीग्रल fz dz 0 हो जाएगा। इसका मतलब थ्योरम में भी हमसे कहा गया है कि एक तो कर्व को कंसीडर करो, दूसरा उसके अंदर का रीजन भी कंसीडर करो। देखा है ना? आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑन एंड इनसाइड एवरी पॉइंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व C। इनसाइड की बात कर दी, इसका मतलब अंदर के रीजन की भी बात उन्होंने की है। अब अगर अंदर के रीजन की बात की है तो हमारी ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अब अगर ये थ्योरम एप्लीकेबल तो इस पार्ट को हम कैसे कह सकते हैं? देखो ये m हो गया और ये माइनस v जो है वो n हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? इफ आई से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या है? ये है इंटीग्रल फाई C fz dz। सो now apply Green's theorem in equation number 1। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इक्वल टू, ये सिंगल इंटीग्रल बदल जाएगा डबल इंटीग्रल में, और हमें मिलेगा डेल एन अपॉन डेल एक्स। एन कितना है? माइनस वी, सो दिस इज माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये क्या हो जाएगा? m कितना है? u, सो माइनस डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। दूसरा देखिए प्लस आई इंटीग्रल फाई c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m कितना है? v, और n कितना है? u, तो ये बन गया डेल u बाई डेल एक्स माइनस डेल v बाई डेल वाई इंटू, अब इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये जो रीजन बनाया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ समझाना था आपको, तो मैंने समझा दिया। ये हो गया हमारा dx इंटू डी वाई। ठीक है, ये कहीं हमने और भी पढ़े हैं ना, आपको याद होगा जब हम एनालिटिक फंक्शन को प्रूफ कर रहे थे कि हाउ कैन वी से दैट अ फंक्शन इज एनालिटिक। तो हमें मालूम है कि एक फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब वो कॉशी रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ना देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट इज सेड दैट fz इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है ना, इफ fz इज एन एनालिटिक फंक्शन देन कैन आई रेज इट? Now we know
that fz is an एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि fz एक एनालिटिक फंक्शन है। अब अगर fz एक एनालिटिक फंक्शन है तो देन it must satisfy CR equations which are what? Cauchy-Riemann equations। तो क्या हो जाएगा, del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. Okay, if I say this is equation number 2, apply CR equation in equation number 2। अब मैंने ये जो इक्वेशंस हैं वो इसमें अप्लाई कर दी हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखिए इसकी वैल्यू है del u by del y के बराबर। व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट डबल इंटीग्रल r del u by del y माइनस del u by del y इंटू dx dy। और देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर है, del v by del y के। सो प्लस इंटीग्रल del v by del y माइनस del v by del y into dx dy। Now this is what, 0 and plus I into 0, so this is equal to 0। Then what can I say, I can say that integral phi c fz dz is equal to 0, hence proved। So this was all about Cauchy integral theorem। Okay, I hope you understand theorem very well। If any doubt, you can anytime write to me that what is, I have a doubt here, I will immediately reply you। Okay, so now this theorem has two corollaries also। Now what are that two corollaries? See, कॉरोलरी क्या कहती है, कॉरोलरी 1, व्हाट डज इट से, ये कहती है सपोज अल्फा एंड बीटा आर inside region R and C1 and C2 are any contours inside R joining अल्फा टू बीटा, देन इसका मतलब क्या हुआ ये समझाती हूँ। देखिएगा हमारे पास ये रीजन है, ये कंटूर है C और ये रीजन है R। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि माना कोई पॉइंट यहाँ है अल्फा और कोई पॉइंट यहाँ है बीटा, इस तरीके से। तो अल्फा बीटा को माना ये C1 जोड़ता है और फिर बीटा से अल्फा को ये C2 जोड़ता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि इंटीग्रल C1 fz dz जो है वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल C2 fz dz के। ठीक है, तो ये एक कॉरोलरी है। अब हम आते हैं कॉरोलरी नंबर 2 पर। क्या कहती है कॉरोलरी नंबर 2? कॉरोलरी नंबर 2 कहती है लेट C1, C2 up to so on Cn be positively oriented closed contours। अगर वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज्ड कंटूर्स हैं where C1, C2 up to so on Cn
each of these contours lies outside of the other contours. अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी आपको. देन अब ये कहने का क्या मतलब है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. पहले मैं इसको एक बार रिवाइज करूंगी और फिर मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करूंगी. देखो ये क्या कह रहे हैं कि R एक रीजन है. ये देखो ये रीजन जो है वो हमारा R है. ये क्लोज्ड कर्व जो है हमारा C है. अब वो कह रहे हैं कि अगर C के अंदर कोई दो पॉइंट्स हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाले जो दो कर्व्स हैं, माना एक C1 है जो अल्फा से बीटा जाता है और एक C2 है जो बीटा से अल्फा आता है, तो इंटीग्रल C1 FZ DZ विल बी इक्वल टू इंटीग्रल C2 FZ DZ. ठीक है, ये पहली कॉरोलरी है. अब दूसरी कॉरोलरी में कि ये क्या कह रहे हैं देखिएगा आप. ये कह रहे हैं कि एक क्लोज्ड कंटूर C है. नाउ लेट अस सी दिस इज अ क्लोज्ड कंटूर C. अब इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर बहुत सारे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से ये Cn है. ठीक है, क्या कह रहे हैं, बी पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज्ड कंटूर्स वेयर ईच ऑफ दीज कंटूर्स लाइज आउटसाइड ऑफ द अदर कंटूर्स. सी की बात नहीं की गई है, इन C1 C2 Cn की बात की गई है. ठीक है, सब पॉजिटिवली यानी एक ही डायरेक्शन में है सब. और क्या कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे अंदर इसके जो बहुत सारे कंटूर्स हैं वो एक दूसरे के आउटसाइड हैं, आउटसाइड ऑफ द अदर कंटूर्स. देन क्या, इंटीग्रल C FZ DZ विल बी इक्वल टू इंटीग्रल C1 FZ DZ प्लस इंटीग्रल C2 FZ DZ प्लस अप टू सो ऑन Cn FZ DZ. Okay, now if n is equal to 2 then what, तब क्या होगा, मान लो केवल दो ही हैं तो क्या, इंटीग्रल C FZ DZ इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 FZ DZ प्लस इंटीग्रल C2 FZ DZ. So these are two corollaries of the Cauchy integral theorem. Okay, now let us take a question and try to understand that how this Cauchy integral theorem can be implemented on the given questions, or how to find the integrals using Cauchy integral थ्योरम. बेसिकली मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कॉशी ये हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ते क्यों हैं, जो अच्छे अच्छे इंटीग्रल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी पढ़ते हैं. ये एक बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है. तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन एंड सी हाउ कैन वी सॉल्व अ इंटीग्रेशन क्वेश्चन यूजिंग कॉशी इंटीग्रल थ्योरम. ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज find the integral of integral C 3z square plus 7z plus 1 upon z plus 1 into dz, where C is the सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 1/2. ये दिया हुआ है सॉल्यूशन. ठीक है, अब आप हम सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटीग्रल इज गिवन इन, इंटीग्रल इज गिवन इन z. इसका क्या मतलब हुआ, we can apply, we will apply
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, डेफिनेटली, ठीक है, चाहे कैसा भी है, z है तो कॉम्प्लेक्स हो गया और इंटीग्रल का साइन लगा है तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, करेक्ट, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने लाइन इंटीग्रल पढ़ा है। लाइन इंटीग्रल में मैंने आपको सिखाया था कि जब भी z दिया हो तो हम re⁻i थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और क्या सिखाया है, और मैंने सिखाया है कि हम ये जो है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम है। क्या है कॉशी इंटीग्रल, मैंने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम सिखाई है। तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि अगर fz जो भी z दिया है, यही तो दिया है ना z, तो जो भी z दिया है अगर उसके अंदर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ही वो कॉन्टिन्यूअस होगा और तो ही वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर किसी भी एक पॉइंट पर नहीं, तो हमारी अगर किसी भी एक पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी। लेकिन अगर हर पॉइंट पर जो दिया हुआ कंटूर है उसके अंदर और उसके ऊपर अगर हर पॉइंट पर वो एनालिटिक है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज द कंटूर गिवन, कंटूर गिवन, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, गिवन कंटूर क्या दिया है, mod z इज इक्वल टू हाफ। इसका मीन्स क्या होता है, मीन्स अ सर्कल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1/2, सेंटर 0 और रेडियस 1/2। लेट अस ड्रॉ दिस, ठीक है, हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 1/2, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज हाफ एंड दिस इज -1/2। हमारा जो सर्कल है वो उसका सेंटर 0 है तो रेडियस हाफ है, तो हमारा जो सर्कल है वो ये आ जाएगा। नाउ दिस इज आवर कंटूर सी। हमें इसके अंदर देखना है वो पॉइंट जिस पर, या ये चेक करना है कि किस पे नहीं है, ठीक है। तो अब हम किसको चेक करेंगे, अब हमने ये बना लिया पहला पॉइंट कि हम देखेंगे ये z में है तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन लगेगा। दूसरा पॉइंट की कंटूर क्या दिया, उसका ग्राफ बना लिया। और चौथा पॉइंट कि जो fz है उसको चेक करेंगे कि वो हर पॉइंट पर डिफाइंड है या नहीं है। आपको याद होगा कि मैंने जब लास्ट टाइम रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम कराई थी तब मैं आपसे कहती थी हमेशा डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर को 0 बनाकर देखते हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 होता है किसी पॉइंट पर तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होते ही वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये जो fz है वो हमें दिया है 3z² + 7z + 1/z+1, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब हम इस डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, fz will not be analytic if denominator is 0। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो fz एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब देखें डिनोमिनेटर हमारा कहाँ पर 0 है, हम डिनोमिनेटर को 0 करके देखते हैं। व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू z + 1 इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 कब होगा, अगर हमारा ये जो z + 1 है वो 0 हो जाता है तो अब z + 1 0 कब होगा, z + 1 0 होगा when z इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि दैट दिस फंक्शन विल नॉट बी एनालिटिक, fz विल बी एनालिटिक at every point except at z is equal to -1, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि fz एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, कहाँ पर नहीं होगा, z इज इक्वल टू -1 पर एनालिटिक नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि fz विल बी एनालिटिक at every point
ठीक है, हर जगह एनालिटिक होगा, एक जगह ऐसी है जहाँ पर वो एनालिटिक नहीं होगा। वो कौन सी जगह है? वो जगह है z इज इक्वल टू -1। z इज इक्वल टू -1 को छोड़कर एफ जेड हर जगह एनालिटिक है। अब देखो क्या z इज इक्वल टू -1 इसके अंदर आता है? तो देखिए मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ, नंबर 5, z इज इक्वल टू -1 इज नॉट ऑन और इनसाइड मॉड z इज इक्वल टू हाफ। उसके तो आसपास भी नहीं है, ना तो उसके ऊपर है ना ही उसके अंदर है। सो हेंस अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, इसका मतलब हुआ इंटीग्रल सी फाई 3z² प्लस 7z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल dz इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एफ जेड है वो कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, यानी हम उसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, टेंशन खत्म। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को हम 0 करते हैं और कोई पॉइंट निकल कर आता है जो कि दिए हुए कंटूर के अंदर या उसके ऊपर है, तो हम कॉशी इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आता है तो तुरंत उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, now I am writing a question for you guys. This is a assignment. Whoever answer this question first, I'll announce his name and I like to announce इसका अगले वीडियो में उसका नाम मैं बताऊंगी कि किसने सबसे पहले करके दिखाया। So I am showing you what is दिस इज़ द इनकरेजमेंट क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो भी इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा उसका नाम अगली वीडियो में मैं अनाउंस करूँगी। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस on Cauchy integral theorem as well as verification of Cauchy integral theorem, which is very very important question, so we will discuss these kind of questions like verification question and few more question of on based on Cauchy integral theorem. Till then, goodbye, have a nice day.